ऐसा सब ना। तो अब लास्ट पॉडकास्ट में, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि साइबर क्राइम क्या होता है और एआई वहाँ पे क्या रोल अपना इम्प्लीमेंट कर पा रहा है और डाटाबेस क्या होता है। तो बेसिकली अब वही चीज़ है। तो जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था, इंस्टाग्राम का आपने एग्जांपल दिया था और लाइक एजोर का एग्जांपल दिया था। तो वहीं पे कई सारे प्लेटफॉर्म है और कई सारी सर्विसेज है। तो वहाँ पे बैलेंसेस क्या रहेगी, लाइक एक तरफ इंजॉयमेंट और एक तरफ वहाँ की बात है कि वहाँ पे क्या प्रोटेक्ट रह सकते हैं। जैसे अगर इंस्टाग्राम का ले, तो वहाँ पे भी कई सारे टर्म एंड कंडीशन है। वहाँ पे हम इंजॉय भी कर पा रहे हो, अपना माइंडसेट भी चेंज कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या रहेगी पर्सनल प्राइवेसी। तो यहाँ पे one of the most basic yet most of the complicated concept of cybersecurity comes in. That is CIA triangle, right? Where like we try to maintain a balance between integrity, complexity, and along with that authenticity, right? कि आप कितना comfort दे पा रहे हो, आपका like comfort देते साथ ही आपका like कितना integrated है आपका system, और अगर आपका सिस्टम ज्यादा इंटीग्रेटेड है, आप ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑन द सेम हैंड वो फीचर्स कितने ज्यादा ऑथेंटिक है, मींस ये है ऑथेंटिक है, लाइक हाउ मच दे आर प्रोटेक्टेड। तो होता क्या, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स टू साइड्स ना, फ्रॉम अ पॉइंट इन द मिडल, तो तीसरी साइड हमेशा कम हो ही जाती है। दैट्स द टेंडेंसी ऑफ आवर वेब 2.0, राइट? तो अगर जैसे बेसिक पॉलिसीज अगर अपन बात करें, लाइक टू एंजॉय और टू प्रैक्टिस प्राइवेसी, तो वी नीड टू मींस thoroughly review the privacy policies जो अपन sign कर देते, like I agree to the privacy policies and those, right? And along with that, you should understand के how your data will be collected, right? अब जैसे if अगर आज की तारीख में if you are on Android 14 or Android 13, तो initially means it came as in like I guess for Android 10 or Android 11, the calculator also used to ask for locations, or even Right. in today's versions also calculator asks for your location. So it's a feature of the currency conversion that is being provided. But again, on the same end, you are losing your location privacy to the calculator app. Right. It no Because sense. because if calculator is updating the means the prices, or the currency prices, that means it's connected to the internet, and if it's Right. connected to the internet, it can be exploited, right? It just we never know कि कब हो जाए, right? तो ये चीज है कि like we should limit our information sharing, और जो privacy settings है उनको enhance करो। like यहाँ पे like means I usually talk these days I talk about NIM, that how NIM is helping in all this, right? तो NIM is a privacy focused technology जो like अपने को पर्सनल प्राइवेसी, अगर सपोज अपने चलो लोकेशन वगैरह है भी, तो भी अपने को कैसे वो एनोनिमाइज कर रहा है कंप्लीटली, राइट? सपोज पहले क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट VPN या व्हेन वी टॉक अबाउट Tor और डार्कनेट, राइट? वी Right. हैव हर्ड ऑफ these terms, but have you heard of mixnet? No. Like that's the thing, like mixnet is a concept that has been with us for a long time, but we never practiced it because we didn't have the relevant technology. Okay. But wahi pe Web3 gave us the opportunity to use that. So that's where the name comes in. It works around mixnet, where it not only pass your data through multiple nodes or thousands of millions of nodes, but it also breaks your data. कि Okay. सपोज अब जैसे अपन देखते हैं कि हाँ, जैसे डार्कनेट के ऊपर भी कोई पकड़ा गया, Right. like either it's the cyber kill chain where the data is traced back. अब data trace back कब हुआ? क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शन के थ्रू डेटा वाज इंटीग्रल, के 6 MB की फाइल है, 6 MB की फाइल है, तो 6 MB की ही थी। बट व्हाट NIM डज, इट ब्रेक्स द डेटा पैकेट्स टू। अब नाउ योर आइडेंटिटी एज वेल एज द डेटा यू आर सेंडिंग दोनों ब्रेक किए जाते हैं, राइट? इट कैन हेल्प यू इन एनोनिमाइजिंग योर आइडेंटिटी, लाइक जैसे अगर आपके सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो I was amazed, means like why I am crazy about this project is I was amazed like Wireshark आपको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि you are on the network, और it can't capture your data, और अगर हो रहा है तो सेंसलेस है। Okay. Like suppose I am sending my name Prasan, right? तो उसने suppose S कैप्चर कर लिया, Right. right? तो उससे S का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, Right. because S will never directly lead to me, because अगर कोई मेरे को इन्वेस्टिगेट करेगा तो इट विल सर्च फॉर PR पार्ट, PRA फॉर द इनिशियल्स, इट विल नेवर रीच द S, राइट? दैट्स द थिंग। तो वहां पे डेटा प्राइवेसी भी ऑटोमेटिकली आ जाती है
कि वहां पे हुआ क्या, अब सपोज फोन है, सपोज मैं फोन के अंदर यूज कर रहा हूँ, टेलीग्राम के अंदर इनका इंटीग्रल पार्ट होता है वेयर यू कैन लिंक देम टू द टेलीग्राम। तो आपका जो भी डेटा है, आप भले सिंपल इंटरनेट से कनेक्टेड हो, बट आपका सारा डेटा निम्न नेटवर्क से होते हुए जाता है। लाइक आपके जो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड 128 बिट प्रोटेक्शन वाले जो राइट। मैसेजेस है, वो और ज्यादा एनोनिमाइज हो जाते हैं। राइट, अब कोई और स्टडी करेगा तो उसको ये भी आइडिया नहीं होगा कि कौन से लेवल का इंस्क्रिप्शन है। वाई? बिकॉज डेटा इतना ज्यादा बाइफरगेट हो जाता है, अपने को पता ही नहीं लगता क्या जा रहा है। राइट, तो वो वही चीज है, वहां पे हुआ क्या, यू आर गेटिंग प्राइवेट, लाइक योर डेटा इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, राइट, यू आर बीइंग एनोनिमाइज्ड, along with that your data is being decentralized, कि सारा डेटा पैकेट टूट रहा है, नेटवर्क पे पूरा फैल रहा है, एंड देन इट्स गोइंग टू समवन एल्स। राइट। तो लाइक वहाँ पे अपने को क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक आपने बताया पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हमारा कंट्रोल है, तो लाइक वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग आती है, लाइक सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो आजकल ऑनलाइन स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम हो गया, या जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल आया था बॉयज रूम करके एक केस आया था सामने, जहाँ पे वो इंस्टाग्राम पे होता, तो लाइक वहाँ पे क्या मेंटेलिटी हो रही है और वहाँ पे क्या चीज है जो डिसीजन मेकिंग में अपनी हेल्प कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या एडवाइस करोगे आप? राइट, तो व्हेन वी टॉक अबाउट शेयरिंग आवर ओन डेटा ना, तो ह्यूमंस आर फूल इन दैट, बिकॉज वी ट्रस्ट वेरी इजीली। राइट, वी डोंट ट्रस्ट द ऑथेंटिक थिंग्स, बट जो जितनी ज्यादा स्कैम लगेगी ना, उसके ऊपर अपना उतना ज्यादा ट्रस्ट होता है। बिकॉज स्कैम्स हैपन इन ओपन, के सपोज कोई खुलेआम शायाम स्कैम कर देता है, हम्म। लाइक द फ्रीडम 21 और द फ्रीडम 250, जो फोन वाला हुआ था, द बिगेस्ट स्कैम एवर। राइट। राइट, तो वो क्यों कि वो खुले में था। व्हाट इफ दे वुड हैव बीन ऑथेंटिक, और फिर उन्होंने फोन बेचे होते, तो इट हम्म। वुड नेवर हैव बीन फिजिबल फॉर बोथ ऑफ देम, नीदर द कंज्यूमर्स नॉर द क्रिएटर्स और द प्रोड्यूसर्स। राइट, इसके अंदर अब होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन प्राइवेसी, तो वी हैव डेटा ब्रीचेस, राइट, के लाइक अपन डेटा ब्रीच है, अगर सपोज कोई होता है, एक है जहाँ पे सपोज इंस्टाग्राम का डेटा ब्रीच होता है, फॉर लाइक लेट्स से नहीं हो, बट सपोज हुआ, तो हु इज मोर सिक्योर, जिसने कुछ पोस्ट कर रखा है या जिसने कुछ भी पोस्ट नहीं कर रखा। और जिसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया ऑफ कोर्स। राइट, तो यू आर, it's your choice to share your data, you can interact with your friends, you can chat with them no matter what, like at least your identity will be safe। right, जैसे कि, तो कि वहां पे आप नॉट इवन यू आर safeguarding yourself from data breaches, but also you are safeguarding your identity, you are preserving your identity theft। राइट, उतना ही आप अगर सपोज आपने डेटा नहीं शेयर कर रखा, सपोज आई डोंट शेयर, लाइक आई लाइक कार्स, राइट, आई एम क्रेजी अबाउट जापान, गोइंग टू जापान, द ईडीएम कार, द जेडीएम कार्स। राइट, तो अगर ये चीज मैं अपने फीड पे पोस्ट करता रहूं या आई शेयर इट एवरीवेयर, so it can be a way to lure me okay, okay, this is a event happening in Japan, right, it's one of the biggest event, it can be a fake event, right, कि राइट। आपने इवेंट ट्रैक पे बना दिया, आपने meet.com पे बना दिया, right, तो अब what I will be do it, this attack is now phishing attack। why? Because I put up my data there, like I showed my preferences के okay, I like JDM car, right, तो वहां से ये चीज मीन्स कैसे आपकी सिर्फ एक फोटो पोस्ट करने से हैज लेड टू अ फिशिंग अटैक। राइट, और आई से कि लाइक आई यूज आई प्रेफर ऑनलाइन वॉलेट्स हो गया, राइट, और आई प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, लाइक स्क्रैप शॉपिंग हो गई, तो वहां पे मेरा फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है कि लाइक ओके, मेरे को सपोज कोई कीचेन है, मेरे को अच्छा लगा, या मैं कीचेन कलेक्टर, तो कोई फेक कीचेन की वेबसाइट बना के कर सकता है, इट विल हैव राइट। माय डेटा, इट विल हैव माय क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, इट विल हैव माय सीवीवी, राइट, तो दैट्स द थिंग। तो ये सारी चीजें, लाइक छोटी सी चीज कहाँ कब इफेक्ट कर जाए, वी नेवर नो। ओके। तो लाइक जैसे अभी आपने बताया कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो हमारे ऊपर है, तो लाइक वहाँ पे क्या एक एज अ एक इंडिविजुअल क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जैसे आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मोनेटाइजेशन आ गया, डाटा मोनेटाइजेशन आ गया, और कई सारी वेबसाइट भी है जो सिक्योर नहीं है पर वहाँ पे अर्निंग होती है, तो वहाँ पे क्या वहाँ पे भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वहाँ पे एज अ पर्सन क्या उसके राइट होने चाहिए, क्या उसे एज अ माइंडसेट होना चाहिए कि वहाँ पे वो क्या क्या पर्सनल चीजें शेयर करे और ना करे वो? तो there is this thing, one is online debit card or online credit cards, राइट। like the virtual credit cards, जो like I usually prefer अगर कहीं भी ऑनलाइन शॉप कर रहे हो तो, राइट, वहां पे आप यू पुट इन सर्टन लिमिट अमाउंट ऑफ डेटा, सपोज यू पुट इन $100, $100, राइट,
तो you will lose that much, but not more than that, right? You should first of all evaluate the necessity कि क्या मुझे इस साइट से शॉप करना है या ये साइट का यूज करना मेरे लिए नेसेसरी है, और आई जस्ट वांट इट, बिकॉज यू नो नीड एंड वांट आर वन ऑफ द right, मोस्ट important driving factors of human nature, right? Because we humans prioritize or mistake wants as our needs. ठीक है, we should use privacy settings. तो suppose जैसे क्यों यूज कर रहे हो गूगल, like if you are so concerned, right, use DuckDuckGo, right? It saves you from trackers, like तुमको कोई third party track नहीं कर रही है, you are away from the what you say intelligent marketing, right, intelligence marketing, right? Or what you say, I guess IMA, if I'm not wrong. Then limit your public sharing, कि like कितना खुद का है, कितनी ज्यादा पब्लिक के साथ आप डेटा शेयर कर रहे हो, राइट? तो अपन सपोज जैसे अपने को गाड़ी अच्छी लगी, सपोज अपनी, वी पुट योर फोटो ऑफ इट ऑन फेसबुक, राइट, विद अ नंबर प्लेट ऑन इट। तो देयर आर, अब जैसे आज की तारीख में आरटीओ के एप्स ओपन रहते हैं, तो अगर आप गाड़ी का नंबर डालोगे तो यू विल सी द चेसी नंबर, you will see the owner name, you will see the policy, insurance policy, राइट? तो वहां पे ये चीजें होती है, सपोज किसी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रखा है, राइट? तब इसमें हो क्या सकता है, यू कैन टेक अ स्क्रैपी बाइक एंड गो एंड बश इट इन विद द कार। तो व्हाट हियर यू विल डू, और हियर व्हाट विल हैपन, जो जिसका एक्चुअल लॉस हुआ है, he won't get anything from the insurance company. right, Why? Because it's third party. But mm, यहाँ पे मेरा भले लॉस ना हुआ, सपोज मैंने like I invested 20,000 or 30,000 in the bike and purchased it from the off market, right? mm, And I busted it into expensive car जिसका like insurance policy बहुत महंगा है, right, right? तो वहां पे अब मेरे को तो मेरा पूरा क्लेम मिलेगा, right, right? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो होती है, एक्चुअली हो रही है, बट वी कांट प्रूव इट। Why? Because we have shared our data publicly. ये कहाँ से हुआ, how you became the victim? Why? Because you shared a photo of your car with a number plate visible, right? Or and second thing, we should be skeptical about request, you know, that when someone requests our personal information, जैसे Instagram ads हो गई या internet ads हो गई, जहाँ पे they ask you that for the sign up before reading right, it, or like even the pages or the blog sites, you know, where they ask you need to sign up for the firewall or the paywall to pass by the paywall, right? The times of, in fact, the Times of India does this, right? They capture your email address, they add you to their newsletters just to spam you with the ads and all, right? So ये सारी चीजें you should be, you know, means be skeptical, use pseudonyms। ये जरूरी नहीं कि you have to use your own ID, like, right? I have certain email addresses for each and every task. For banking, I have a separate email. Like, in fact, I'm sharing this data on the podcast now, so it's like I'm leaking my private information, right? के सवाल right, मैं बता रहा हूँ, right? Exactly. right, अब चीजें होती है, बहुत बेसिक लेवल पे हो जाती है, and we are not even aware कि हाँ, right? Suppose कोई सुने कि हाँ, like I'm using certain email address for my bank account, right? So he can target me कोई banking policy के through के okay, this is something, can I have your email address? तब right, होगा क्या, अब मेरा सारा बाकी डेटा जो है, सपोज सोशल मीडिया डेटा हो गया या ये सारा, वो सेफ रह गया, बट मेरा banking बैंकिंग data, डेटा सारा right, क्या, राइट? तो उसकी जगह यूज सूडोनिम्स, जैसे सपोज लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग, लाइक अगर आपको कहीं वेबसाइट कोई चीज टेस्ट आउट करनी है, कोई वेबसाइट, राइट, तो हैव सिंपल email address, like I have one cyber test, right, cybertest@gmail.com. right, So I use that email address for verifying like one time OTP and all those for all the website that I'm not gonna visit twice, right? तो वहां पे अगर ऐसा वो email हैक भी होगा तो मेरे को कोई इशू नहीं, because there is nothing on it, right? ये सब चीजें, and permissions regularly review करते रहने चाहिए, like कैमरा, अब कैमरे के अंदर वो लोकेशन डेटा एंड ऑल दिस, यू नो, इट आस्क फॉर माइक परमिशन, इट आस्क फॉर द कैमरा परमिशन इटसेल्फ, राइट? right, along with that it asks for location permission। अब होता क्या है, वी एज अ यूजर क्या, चल लोकेशन चाहिए होगी यार, इसको कुछ करना होगा, कुछ काम बैकएंड में होगा, बट व्हेन इट कैप्चर्स द फोटो इट क्रिएट्स अ मेटा डेटा, right, जहाँ पे इमेज कहाँ पे कैप्चर हुई, कितने बजे कैप्चर हुई, व्हाट इज द रिजोल्यूशन। अब होता कि सपोज आई गेट अ फोटो as a forensic analyst, like I'm a forensic enthusiast, right? So what I will do, I will examine, suppose कोई फोटो मेरे को भेजता है, तो like इस सपोज जैसे कैमरा हो गया, इट्स 64 मेगापिक्सल। अब फोटो से यू कैन पुल आउट क्या, फोन का प्रोसेसर क्या है, फोन का मॉडल क्या है, राइट? फोन के अंदर कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, राइट? या वो कौन से टाइप के इंटरनेट से कनेक्टेड था जब ये फोटो हुई,
कैप्चर की गई। तो अब यहाँ से होगा क्या, अब मेरे पास एंड्रॉइड वर्जन आ गया, सपोज कोई एंड्रॉइड पुराना है, सपोज समवन इज यूजिंग एंड्रॉइड 11, so Android 11 have certain exploits. Right. I can exploit them, Hmm. right? I can have the, at least we say like IP address, right? तो ये सारी चीजें, सपोज स्पूफ आईपी एड्रेसेस हो गए, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, लाइक वी शुड रिव्यू आवर परमिशंस मोर रेगुलरली। Okay. तो मतलब अपने को यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि अपने को बैलेंस बना के चाहिए कि अपने को वर्चुअल स्पेस में और अपने रियल लाइफ में पर्सनल स्पेस में क्या चीजें शेयर करनी चाहिए और क्या नहीं, राइट? राइट, एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स द डिजिटल वर्ल्ड। अब जैसे वॉलेट्स हो गए, ऑनलाइन वॉलेट्स हो गए, वी थिंक दैट क्रिप्टो वॉलेट्स आर नॉट सेफ। राइट। व्हाई? बिकॉज दे डोंट होल्ड एनी अथॉरिटी टू एनी एक्सटर्नल बैंक, राइट? पर वहां पे ये भी तो देखो, योर वॉलेट इज योर सिंगल आइडेंटिटी। राइट। यू लूज दैट वॉलेट, इट्स योर मिस्टेक, राइट? वो उसमें से कोई पैसे नहीं चुरा रहा until and unless you lose the secret pass key, rather than कि अगर सपोज बैंक हैक होता है उसको कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो ये सब चीजें लाइक प्राइवेसी के अंदर, लाइक आई से, अगर इन टुडेस वर्ल्ड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन योर प्राइवेसी, like NIM is one of the best projects that I recommend. Like they are working with governments around the world to make sure that उनकी कंट्री वाइड नेटवर्क इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सके, राइट? अपन देखते हैं कि जैसे कॉलेज के वाईफाई हो गए, we connect to them कि हाँ okay this is good, right? Even when I go to colleges to take lectures now, I prevent from connecting with the Wi-Fi's that are available at the university or colleges, right? Because you never know what if they are in monitor mode, right? Or what if they are capturing that the login sessions, what if they are capturing your MAC address, right? तो ये सारी चीजें आपकी प्राइवेसी को ब्रेक कर सकती है, लाइक दे कैन अफेक्ट योर प्राइवेसी। ओके। है ना? सपोज जैसे अपन तो देख रहे हैं कि हाँ चलो कोई है, सपोज वी गो टू XYZ यूनिवर्सिटी, जिसको ओरिजिनल ओरिजिनल जो वाईफाई चलते हैं वो चलते हैं स्टूडेंट ईयर वाइज के, सपोज द ग्रेजुएट, सपोज स्टूडेंट पासिंग इन 2026, तो स्टूडेंट 2026, राइट? मैं सपोज एज अ गेस्ट गया हूँ और मेरे को सपोज, अगर मैं 2026 स्टूडेंट जो 2026 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, मैं उनकी कोई वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो और मेरे को उसी से कनेक्ट करना है, बट आई एम नॉट श्योर, एंड आई सी XYZ गेस्ट नेटवर्क जो ओपन है, तो व्हाट आई विल नेचुरली थिंक कि ओपन है, मैं गेस्ट हूँ, ये कॉलेज का नाम है, तो आई शुड कनेक्ट विथ इट। राइट। ऑन द सेम एंड क्या हो सकता है, क्या पता जिस हॉल में मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसी हॉल में कोई हैकर बैठा हो हु इज ऑन द मॉनिटर मोड, राइट, ये हो राइट? सकता है। हाँ, तो दैट कैन मीन जस्ट किल मी अप, राइट? दैट्स द थिंग। तो ओके। वहां पे लाइक ये सारी चीजें, यहीं पे निम बहुत काम आ जाता है, राइट? आपका लाइक आपका वर्चुअल एड्रेस गायब हो जाता है, क्या डेटा आ रहा है जा रहा है पता नहीं लगता है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है वो नहीं पता लगता है, इनफैक्ट आधा तो कैप्चर ही नहीं होगा, राइट? दैट्स द थिंग।